ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، آپ سن رہے ہیں الاؤ اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ الاؤ کی 9 ایک ساتھ سن چکے ہیں، اب قسط 10 ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے 2 مر گئے، ہم سمجھیں گے تیجا بھی مر گیا، پر اس خاندان کو بخشیں گے نائیں ایب کے۔ دیکھو تمہیں مجھ پر یقین ہو یا نہ ہو، لیکن میں تمہیں پورے یقین سے کہتا ہوں تم لوگ اپنا بندہ لے جاؤ۔ میں نرم لہجے میں کہا، پاگل سمجھا ہے کارے ہمیں؟ ایک بندے کی خاطر اور بندے مروا لے میں، پھر کچھ لیے دیے بغیر، کسی بات کے بغیر یوں کیسے چھوڑ دیں گے وہ؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو میں نے کہا، چل بتا، جہاں کہو میں وہیں چھوڑ دیتا ہوں، جہاں کہو وہاں لے آتا ہوں اسے۔ کیوں چھوڑ رہا ہوں یہ وہیں آ کر بتا دوں گا۔ میں نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا تو دوسری جانب سناٹا چھا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، بتاتا ہوں ابھی۔ یہ کہتے ہی اس نے لائن کاٹ دی۔ میں نے فون زمان کی جانب بڑھایا تو وہ ہونک سا بنا میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تم پاگل ہو؟ تم نے ان کے بندے مارے ہیں اور تمہیں واپس آنے دیں گے؟ کیا تم خودکشی کرنے جاؤ گے؟ میں نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ اس نے آخری لفظ بہت شدت سے کہے تھے۔ زمان کا خوف بے جا نہیں تھا، میں نہ صرف سمجھتا تھا بلکہ اچھی طرح جانتا بھی تھا کہ میں وہاں اگر جاتا ہوں تو موت کا سامنا مجھے کرنا ہوگا۔ میں جو سوچ کر یہاں آیا تھا کہ حالات کو اپنی دسترس میں کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت لگے گا، میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا، لیکن میری سوچیں اپنی جگہ دھری رہ گئی تھی۔ حالات اس قدر تبدیل ہونے لگے تھے کہ مجھے ان حالات کے ساتھ چلنا نہیں توڑنا تھا۔ میں اپنی سوچوں سے نکلا اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھو وہ لوگ خوفزدہ ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو خوفزدہ ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہم ان پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں اسی طرح انہیں بھی ہم پر یقین نہیں ہوگا۔ وہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ کیسا راستہ؟ اس نے سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ فون آنے دے پھر بات کرتے ہیں، میں نے سکون سے کہا تو وہ میرے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں جسے میں مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی، اس نے اسپیکر آن کر کے فون میرے سامنے کر دیا، تب دوسری جانب سے پوچھا گیا، او بھیا زمان، تو بتا وہ بندہ کون ہے جس نے ابھی بات کی تھی؟ تجھے کیا کہنا ہے؟ اپنا مقصد؟ اس نے کہنا چاہا تو دوسری جانب سے بات کاٹتے ہوئے پوچھا گیا، بندہ بتا پھر بات کرتے ہیں نا۔ تبھی میں نے فون اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میں وہی ہوں جس کے ہاتھوں تمہارے دونوں بندے قتل ہو گئے ہیں اور تیسرا زخمی ہے جس کو لے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ تم وہ ہو؟ یہ کہہ کر دوسری جانب چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ بے حد دبے دبے غصے میں بولا، تو پاگل ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے کہ تو؟ دیکھ میں زخمی اور بے بس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں اسے کیوں واپس بھیجنا چاہتا ہوں وہی آ رہا ہوں نا، ان سے پوچھ لینا۔ اتنا جگرا ہے تم میں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جگہ بتا، آ رہا ہوں۔ تم لوگوں میں ہمت نہیں ہے تو میں دکھا دیتا ہوں جگرا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو دوسری جانب سے کہا گیا، چل پھر ڈیرے پر آ جا، ہم تیرا وہیں انتظار کرتے ہیں۔ اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے زمان کو فون واپس کیا تو وہ خوفزدہ لہجے میں بولا، علی یار وہ تمہیں مار دیں گے، کیوں پاگل پن کر رہے ہو؟ تم نے ان کے 2 بندے مارے ہیں یار، یہ بات کیوں نہیں سمجھتے ہو تم؟ میں قتل ہو جاؤں گا نا، کوئی بات نہیں، میں نے کہا اور اٹھ گیا تو اس نے پوچھا، ٹٹو بہوڑ کا ڈیرا کدھر ہے؟ اس بارے میں تمہیں پتا ہے؟ نہیں، لیکن میں پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا اور چل دیا۔ میں سیدھا اسپتال گیا جہاں وہ راجستھانی اس بیڈ پر پڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے مسکراتے اس سے ہاتھ ملایا تو اس نے بھی پھیکی سی مسکان کے ساتھ میرا ہاتھ تھام لیا۔ چلا تجھے چھوڑ دوں۔ تم؟ وہ میرن شاہ، وہ پیروزہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو میں نے سنجیدگی سے کہا، اگر جانا ہے تو وقت ضائع نہ کرو، خاموشی سے میرے ساتھ چل دو، راستے میں ساری بات بتا دوں گا۔ جانا تو ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا، تو چل پھر، اٹھ اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جا۔ میں نے جان بوجھ کر ہولے سے کہا تو وہ بیڈ سے اتر گیا۔ اس نے جوتے پہنے اور ہولے ہولے چلتا ہوا گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا اور پھر گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، یہ رتو بہوڑ کا ڈیرا کدھر ہے؟ یہ سنتی اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک جانب انگلی سے اشارہ کر دیا۔ دوپہر ہو رہی تھی جب میں رتو بہوڑ کے ڈیرے کے قریب پہنچا۔ ہم راستے بھر باتیں کرتے آئے تھے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں جو چاہتا تھا اس کی سمجھ میں آ گیا تھا یا نہیں۔ وہ سامنے ہے رتو بہوڑ کا ڈیرا، اس نے دبے دبے جوش سے کہا۔ سامنے ایک بڑا سا تالا تھا جس کے ایک جانب کھجوروں کے درخت کا جھنڈ تھا۔ اس کے عقب میں کچی دیوار دکھائی دے رہی تھی جو کافی اونچی تھی۔ درمیان میں کچے کمروں میں منڈیریں دکھائی دے رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، بتاؤ یہیں چھوڑ دوں یا آگے؟ میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولا، نہیں ڈیرے تک چلو۔ میں نے کچے راستے پر گاڑی کی رفتار کچھ تیز کر دی۔
कुछ ही देर बाद एक बड़े से लकड़ी के चाप फाटक के सामने गाड़ी रोक दी। सामने बरामदे में काफी लोग चारपाइयों पीढ़ों पर बैठे हुए थे। इनमें शायद 3 ऐसे आदमी थे जो अपने हुलिये से राजस्थानी लग रहे थे। इनके अलावा 2-4 ऐसे थे जो शायद मकामी थे। मैंने गाड़ी सहन में खड़ी की और उसे उतरने का इशारा किया। वो उतर कर आगे बढ़ गया। मैं भी उतरा और उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही हम बरामदे के करीब पहुंचे तो एक जोशीला राजस्थानी आगे बढ़ा तो दूसरे ने उसका बाजू पकड़ लिया। मैं उसके जज्बात देख रहा था। मैंने लम्हों में सारी सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया था। तभी एक अधेड़ उम्र शख्स उठा जिसने सफेद धोती और कुर्ता पहन रखा था। इसके लंबे लंबे खिचड़ी जैसे बाल थे, चेहरे पर हल्की हल्की घनी दाढ़ी थी। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आओ जवान, मैं हूं रत्तू बहोड़। मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे खुशी हुई तुमसे मिलकर, आओ बैठो। उसने बैठने का इशारा किया तो मैं एक चारपाई पर जाकर बैठ गया और संजीदगी से बोला, दाद देता हूं मैं तुम्हारे हौसले की, लेकिन तुम क्या समझकर यहां आ गए हो? मैं इसे दिलेरी समझूं या तुम्हारा पागलपन? रत्तू बहोड़, ऐसा कुछ नहीं है। मिरन शाह मेरा सगा नहीं है और ना ये राजस्थानी मेरे दुश्मन है। अनजाने में ही सही, लेकिन इन्होंने मुझे मारना चाहा और मैंने अपनी जान बचाई। मैं खुद चलकर यहाँ आ गया हूँ। आगे तुम लोगों का फैसला जो चाहो करो। मैंने ठहर ठहर कर अपनी बात कह दी तो रत्तू बहोड़ सोच में पड़ गया। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, तुम शहर से आए हो और सरकारी मुलाजिम हो। तुम यहाँ तक आ गए, यही तुम्हारी मुआफ़ी के लिए काफ़ी है। नहीं रत्तू बहोड़ जी, मैं मुआफ़ी मांगने के लिए नहीं आया और ना ही ये एहसान लेने के लिए आया हूँ कि तुम लोग मुझे मुआफ़ कर दो। जो हकीकत थी वो मैंने कह दी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती हो, कसूर हो, जुर्म हो तो मुआफ़ी होती है। मैंने बड़े तहम्मुल से रत्तू बहोड़ की जानिब देख कर कहा, तो फिर ऐसा करो, खाओ पियो और वापस चले जाओ। हम अभी तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें मिरन शाह के ही इलाके में मारेंगे। यहाँ से चले भी जाओ तो जहाँ रहोगे वहीं तलाश करके मारेंगे। ये रत्तू बहोड़ का वादा है। उसने दबे दबे गुस्से में अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, रत्तू बहोड़ जी, मुझे तुम्हारी दुश्मनी कबूल है। मैंने कहा और उठ गया। नहीं, मारो इसको। वही जोशीला नौजवान उठकर चीखा, नहीं बक्का, अभी नहीं, मैंने कह दिया, यहाँ नहीं मारेंगे। रत्तू बहोड़ ने तहम्मुल से कहा, नहीं मारूंगा, यहाँ से ले जाकर बॉर्डर पार मारूंगा। उसने धाड़ते हुए कहा, मैंने जुबान दे दी, अगर तेरा खून इतना ही गर्म है तो इसके इलाके में जाकर मार, मैं तेरे साथ हूंगा। रत्तू बहोड़ ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा। मैंने कहा और गाड़ी की जानिब चल दिया। मैं हद दर्जे चौकन्ना था। अपने पीछे होने वाली जरा सी आहट पर भी मेरे कान लगे हुए थे। मैं जानता था कि मेरे पीछे से वार हो सकता है, लेकिन यकीन नहीं था। मैं बड़े मोहतात अंदाज में चलता हुआ ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। गाड़ी स्टार्ट की और डेरे से निकलता चला गया। कच्चे रास्ते पर रफ्तार तेज करते हुए मेरे लबों पर मुस्कुराहट थी। मैं अपने मकसद में कामयाब रहा था, यानी हालात के साथ दौड़ता हुआ थोड़ा आगे निकल गया था। मैं गाड़ी समेत डेरे में दाखिल हुआ तो बाबा खैरदीन मुझे देखकर यूं खड़ा हो गया जैसे मेरा यूं आना कोई अनहोनी हो। मैंने गाड़ी बंद की और उतर कर उसके पास आ गया। वो मुझे मुसलसल घूर रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो बाबा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस यही कि शाम होने को है, खाना खा लो, अभी गरम गरम मिल जाएगा। वो अटकते हुए जज्बाती लहजे में बोला, हाँ ले आओ, सूरज भी ढलने वाला है। मैंने बदसूर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लेकिन तुम जरा ध्यान से रहा करो, अकेले होते हो यहाँ। मुझे आजकल जाना पड़ता है बीबी सैन के कहने पर, वरना मैं जागता रहता हूँ। उसने अपना खदशा जाहिर किया तो मैंने हौसला देते हुए कहा, खैर है बाबा, बस खाना ले आओ, फिर बातें करेंगे। उसने एक बार मेरी जानिब देखा और फिर रहाइश की जानिब बढ़ गया। मुझे यकीन था कि बाबा खैरदीन खुद कभी नहीं चाहता, फिरोजा जानबूझकर उसे भेजती थी। अब जो बाबा ने जाने का इंदिया दिया था तो इसका मतलब था कि आज भी वो जरूर आएगी। इसका मुझे यकीन था, लेकिन मैं चाहता था कि सावरी मेरे पास आए। मैं इसके साथ बहुत सा वक्त गुजारना चाहता था। मैं इसके साथ बहुत सारी बातें करना चाहता था। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि बाबा खैरदीन खाना लेकर आ गया। मैंने सैर होकर खाना खाया और चारपाई पर लेटते हुए बोला, बाबा तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा, मुझे जमान माहौल की तरफ जाना है। ठीक है पुत्र, मैं बर्तन देकर आता हूँ, उसने कहा और बर्तन समेटने लगा। मेरे दिमाग में कई सारी सोचों ने अपना बसेरा कर लिया था। कुछ देर बाद मैं जमान के पास था। वो उसी रंगीन पलंग पर पड़ा हुआ था। गोपे में बैठी ट्यूब की सफेद रोशनी फैली हुई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। वह हैरत से मेरी जानिब देखने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें वापस आने दिया। तुम नहीं समझोगे, ये सारा हौसले का खेल है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इनके पास चला जाऊंगा। इन्होंने मुझे धमकी दी है कि मुझे यहां आकर मारेंगे। खैर, मैं सुकून से कहते हुए रुक गया। फिर लम्हे भर बाद बोला, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दुश्मन कौन थे? कहा ना, फिर बताऊंगा।
तो मुझे ये बताओ, मीरन शाह ने तो कोई बात नहीं की, इसका क्या रद्द अमल था? उसने तजस्सुस से अपनी बात को पसे पुश्त डाल दिया। मैंने उसकी जानिब देखते हुए कहा, इससे भी मुलाकात नहीं हुई, वो शायद नाराज हो। उसने कहा तो मैंने उसकी बात को अहमियत नहीं दी। इसे पता ही नहीं था कि ये मीरन शाह की मर्जी से हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि ज़बान माहौल मेरे लिए बेफायदा बंदा है। मैं उठ गया। ले भाई, निकलता हूँ। अरे कहाँ चल दी है, अभी तो आए हो, बैठो। मैं उसने कहना चाहा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाबा खैरुद्दीन के साथ आया था, सुबह मिलते हैं। ये कहते हुए मैं मुड़ा और गोपे से निकलता चला गया। वो मुझे आवाज़ें देता रहा, लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी। मैं वापस डेरे पर आकर लेट गया। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अचानक बदल जाने वाले हालात ने मुझे बिल्कुल नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया था। मुझे इसका बिल्कुल भी खौफ नहीं था कि कौन कब कहाँ मुझे मार दे, फिर तो कोई झंझट ही नहीं था। मेरे बाद जो होता रहे मुझे इससे क्या, लेकिन जब तक मेरी जिंदगी थी तब तक मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता था। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, इसमें क्या कुछ मैं देख सकता था और क्या नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता था। मुझे डेरे से वहशत हो रही थी। लाशौरी तौर पर मैं पेरोजा के आने का इंतजार कर रहा था। मैं ज़हनी तौर पर इसे कबूल नहीं कर पाया था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। फिर वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था। रहायशगाह की जानिब आहट हुई और बड़े डेल डोल वाली पेरोजा का हेवला आता हुआ दिखाई दिया। मैं चारपाई पर सिमट कर बैठ गया। वो मेरे करीब आई तो मैं उठ बैठा। मुझे यकीन था कि मुझे अंदर जाने को कहेगी। मैं बहस नहीं चाहता था, लेकिन वो कोई बात किए बगैर चारपाई पर बैठते ही लेट गई। फिर मेरा हाथ पकड़कर घोरे से बोली, आओ मेरे साथ इधर लेट जाओ। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। दूसरी चारपाई पर लेट गया तो उसने मेरी जानिब करवट ले ली। फिर धीमे लहजे में बोली, इस राजस्थानी को छोड़ आया, अच्छा किया, मीरन शाह को सुकून हो जाएगा, लेकिन मेरी दुश्मनी हो गई है उनसे। यह कहकर मैंने उसे इख्तिसार से सारी रूदात सुना दी। वो सुकून से सुनती रही, फिर संजीदा से लहजे में बोली, ओए कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तेरे साथ। तुम हर वक्त तो मेरे साथ नहीं रह सकती हो ना। खैर, मैंने मीरन शाह से कहा था, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। मैंने जानबूझकर ऐसा कहा तो वो नाराज लहजे में तेजी से बोली, फिर वही फजूल बात, मैं कल शहर जा रही हूं, तुझे भी साथ लेकर चलूंगी। एक दो दिन सहरा से निकलकर सांस ले लेना। अब खुश? उसने बच्चों की तरह दिलासा देने वाले अंदाज में कहा, जिस पर मैंने अपना कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। चंद मिनट यूं ही गुजर गए। तभी मैंने पूछा, मुझे अपनी हिफाजत के लिए कुछ असलहा चाहिए, मिल जाएगा? जो चाहिए मुझे बता दे, या फिर आ मेरे साथ, जो भी पसंद है ले लेना। उसने तेजी से यूं कहा जैसे वो यही सुनना चाहती थी। मैंने जानबूझकर हैरत से पूछा, कहाँ जाना है? मेरे साथ उतर घर में, मेरे कमरे में। उसने सुकून से कहा, फिर अपना हाथ बढ़ाकर मेरे गालों पर फेरते हुए बोली, कुछ देर मेरे साथ भी सुकून से ठहर जाना। पेरोजा, मेरी एक बात सुन ले, तू मुझ पर मेहरबान है, मेरी एहसानमंद है और इस एहसान का बदला देना चाहती है, तो इसका यह मतलब है कि मैं तुम्हारी मादी जरूरत भी पूरी करूं। न चाहते हुए भी मेरा लहजा सख्त हो गया। बात भी सख्त थी, एक तरह से ये उसकी तजलील भी थी, लेकिन मैं उससे मुआमला साफ कर लेना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई आम मर्द समझे जिसे वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी दस्तरस में ले ले। इसका मेरे गाल पर फिरता हुआ हाथ एकदम से रुक गया। चंद लम्हे वो हाथ मेरे गाल पर रहा, फिर उसने हाथ वापस खींच लिया। फिर वो बड़े ठहरे हुए लहजे में बोली, मैं समझी नहीं तू क्या कहना चाह रहा है। वही जो तुम्हें समझ लेना चाहिए, मैंने सुकून से कहा। मैं अब भी नहीं समझी हूं, उसने धीमे से लहजे में कहा। तो फिर यूं समझ लो, क्या तुम मुझे अपने साथ धंधे के लिए रखना चाहती हो या फिर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए? मुझे जिस मालो दौलत का तुम लालच दे रही हो वो किस काम के एवज मुझे मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में लेकिन तेजी से पूछा। देख अली, धंधा अपनी जगह, उसका माल तुझे मिलेगा, जितना चाहे कमा ले। मेरी जरूरत पूरी करेगा तो मेरी दोस्ती तुझे नसीब होगी जो तुझे बेखौफ कर देगी, उसने बड़े सुकून से कहा। अगर मैं इन दोनों में से सिर्फ एक चीज को कबूल करूं तो? मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा तो वो फौरन बोली, मतलब तू मेरी दोस्ती नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं तुझसे वैसे ही दोस्ती कर लूंगी। ठीक है, अब धंधे की बात करो, क्या करना है वो बताओ, मैंने पूछा। वो मैं शहर से वापस आकर बताऊंगी, और हाँ, मेरे शहर जाने के बारे में सिर्फ तुझे पता है, कोई दूसरा नहीं जानता। सावरी भी नहीं? मैंने बेसाख्ता पूछा। हाँ, अभी वो भी नहीं जानती। तैयार रहना सुबह, उसने कहा और एकदम से उठकर चल दी। इस वक्त मेरे दिल में शिद्दत से यह ख्वाहिश उभरी थी कि मैं उसे कहूं कि कुछ देर के लिए सही सावरी को भेज दे,
मगर मैंने उस ख्वाहिश को उसी शिद्दत से दबा दिया। मैं जानता था कि इन लम्हात में मेरी इस ख्वाहिश का असर किस कदर बुरा हो सकता था। नीलगु रोशनी का एहसास आसमान पर छा रहा था। जब मुझे जगाया गया, मेरे सामने सावरी खड़ी थी। वो मेरे कांधे पर हाथ रखकर जगा रही थी। अली उठ, पेरोज़ा बुला रही है। क्यों? वो क्यों? ये कहते हुए अचानक मुझे याद आ गया, इसके साथ शहर जाना है। चलते मुंह हाथ धो ले, वो जाने के लिए तैयार खड़ी है। उसने कहा तो मैं उठकर बैठ गया। मैं समझ रहा था कि पेरोज़ा बड़ी खाग औरत है, इसने यहाँ से निकलने के लिए बड़ा मुनासिब वक्त चुना था। उसने मुझे रात नहीं बताया, बल्कि बिल्कुल वक्त पर बताया। इसका एक ही मतलब दिया जा सकता था कि अभी उसे मुझ पर पूरी तरह एतमाद नहीं था। ठीक है, मैं तैयार होता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। नहीं, तैयार होने का वक्त नहीं, बस अपने साथ कपड़े वगैरह ले लो और चलो। वो निकलने के लिए तैयार खड़ी है। उसे कहो गाड़ी लेकर फाटक पर आ जाए, मैं वहीं आता हूँ। ये कहकर मैं उठा और अंदर कमरे की जानिब बढ़ गया। मैंने अपने बैग से 2 जोड़े कपड़े निकाले, इसके साथ बड़ी नोटों की गड्डी निकाली जो मुझे पेरोज़ा ने दी थी, और पलटकर कमरे से बाहर आ गया। मैंने मुंह भी नहीं धोया और कमरे की कुंडी चढ़ाकर फाटक की जानिब चल दिया। जैसे ही मैं फाटक पर पहुंचा, पेरोज़ा की 4 व्हील आ गई। वो पिछली नशीज पर बैठी हुई थी, इसके साथ सावरी थी। मैं ड्राइवर के साथ बैठ गया तो 4 व्हील चलती। हमारे दरमियान छाई खामोशी को पेरोज़ा ही ने तोड़ा। वो धीमे से बोली, डैशबोर्ड में पिस्टल पड़ा है, इसके साथ मैगजीन भी है। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। डैशबोर्ड खोला और पिस्टल उठाकर देखा। ये बिल्कुल उसी साख्त का था जो मीरन शाह ने मुझे दिया था। वो मेरे नेफे में मौजूद था। मैंने इसे वापस रखते हुए मैगजीन को देखा और डैशबोर्ड बंद करके सीट की पुश्त से टेक लगा दी। मैं सामने देख रहा था। मुल्कजी सफेद रोशनी में 4 व्हील की रोशनी मुद्गम थी। सहराई रास्ते में झाड़ियां और पौधे पीछे की जानिब भाग रहे थे। मुझे एक ही एहसास मदहोश कर देने के लिए काफी था कि मेरी पुश्त पर सावरी बैठी हुई है। पता नहीं वो मेरा इम्तिहान थी या फिर इनाम बनने वाली थी। बहावलपुर शहर पहुंचने में हमें 3 घंटे लग चुके थे। मॉडल टाउन की एक शानदार कोठी में 4 व्हील दाखिल हुई तो मुझे पता चला कि ये पेरोज़ा की मलकियत है। वहां का माहौल देख कर यह अंदाजा हो रहा था कि इस कोठी की देखभाल बड़े अच्छे तरीके से हो रही थी। इसका मतलब था कि इसने वहां कुछ मुलाजिम रख छोड़े होंगे। लेकिन अंदर पहुंचते ही पता चला कि मीरन शाह की बीवी और बच्चे वहीं इसी कोठी में रहते थे। वहां पर रहते हुए वो अपने बच्चों को आला स्कूल में पढ़ा रही थी। दुख की एक लहर मेरे अंदर सरायत कर गई। इन लोगों के पास पैसा है तो इनके बच्चे तालीम ले सकते हैं, और रोहे के बासी जिनसे तालीम कोसों दूर थी। मैंने अगले चंद मिनटों में अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दिया। मैं जज्बाती नहीं होना चाहता था। मुझे जाते ही एक कमरा दे दिया गया कि मैं यहाँ कर आराम करूं। कुछ देर बाद नाश्ता आ गया। इसके बाद जो मैं लंबी तान कर सोया तो दोपहर के बाद दरवाजे पर दस्तक से मेरी आंख खुली। दरवाजा खोलने पर मेरे सामने सावरी खड़ी थी। उसने मेरे चेहरे पर देखते हुए कहा, पेरोज़ा सैन बुला रही है तुझे। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। मैंने उसके तने हुए चेहरे पर देखते हुए कहा तो मुझे लगा कि वो कुछ कहना चाहती है। मैंने आंखों ही आंखों में पूछा तो वो बोली, हटो तो सही, मुझे बर्तन लेने हैं। मैं एक जानिब हट गया। वो कमरे में आ गई और फिर मेरी जानिब देख के बिना बोली, यहाँ बड़ी एहतियात से रहना, समझो पेरोज़ा की हर वक्त नज़र है, खास तौर से मुझ पर। ये कहते हुए साथ ही बर्तन भी उठाती रही, फिर ट्रे उठाकर बाहर चलती। मैं चलने में सोचता रहा, फिर फ्रेश होने चल दिया। लाउंज में पेरोज़ा सोफे पर फैल कर बैठी हुई थी। उसने हल्के नीले रंग का फूलदार सूट पहन रखा था। इसके साथ एक बड़ा सा आंचल था। इसके चेहरे पर सख्त के साथ हल्का सा तनाव भी था। मुझ पर निगाह पड़ती बोली, यहाँ बैठ, यहाँ अभी कुछ देर में यहाँ मेहमान आने वाले हैं। वो दोस्त हैं या? मैंने एक ख्याल के तहत कहा तो वो उकताए हुए अंदाज में बोली, यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है। जितना ज्यादा मफाद होता है इतना ही वो करीब हो जाता है। बात तो तुमने ठीक कही है, मैंने कहा और उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। वो बेख्याली किसी अंदाज में मेरी जानिब देखती रही।